Hello and good morning, students. Welcome to our online session. Students, finally we finished our chapter 7, that is an island of trees. Students, today we are going to discuss the exercise of this chapter. However, you will get the printed notes of the exercise also. Still, I am going to explain the exercise of this chapter. So let's begin. The first question. The first question is tick the correct option. So हमको tick करना है जो correct option है. Okay. So first is where were Koki and her grandmother? So Koki and उसकी grandmother कहाँ थे? So options are under the shade of banyan tree. Second, along the river bank. And the C option is under the shade of the jackfruit tree. So students, when we started the chapter, the first line we read about this. तो हम लोगों ने first line read की थी, तो हमने उसमें क्या read किया था? Koki and her grandmother were sitting on a string cot in the shade of an old jackfruit tree. So where were Koki and her grandmother? They were under the shade of the jackfruit tree. So our answer is C. तो first का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? C. Now the second question, what were they doing? वे क्या कर रही थी? They were enjoying the cool breeze. Second, grandmother was narrating incidents about her father and his love for trees. And the third option is they were planting trees. So हमारा स्टूडेंट्स आंसर क्या हो जाएगा? B. Grandmother was narrating incidents about her father and his love for trees. It means कि जो grandmother थी वो इस incident को narrate कर रही थी किसे? कोकी को. About her father and his love for the trees. अपने father के बारे में और उनके trees के लिए love के बारे में, उनके trees के affection के बारे में उस कोकी को अपनी जो story थी वो narrate कर रही थी. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? B. Now the third is the tendril moved away from grandmother's feet towards her father because ये भी हम लोगों ने सेकंड पैराग्राफ में स्टूडेंट्स रीड किया है. her father pulled it, ये तो हो ही नहीं सकता. सेकंड, it like to keep moving, ये भी नहीं हमने रीड किया था. तो हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड, it was fond of her father. हमने ये भी रीड किया था कि जितना अफेक्शन ट्रीज और प्लांट्स का फादर के लिए था उतना ही अफेक्शन फादर का भी ट्रीज और प्लांट्स के लिए था, मतलब दोनों का ही था. हम लोगों ने ये सेकंड लाइन में ही पढ़ा था सेकंड पैराग्राफ की कि ये हम लोगों ने सेकंड लाइन में पढ़ा था कि प्लांट्स एंड ट्रीज लव्ड माय फादर विद एज मच एज टेंडरनेस एज ही लव्ड देम. ठीक है, तो हम लोगों ने सेकंड लाइन में रीड किया था इट वाज फंड ऑफ हर फादर. तो थर्ड ऑप्शन के बारे में हमने रीड किया था स्टूडेंट्स. नाउ द फोर्थ इज it was natural for a man who has served in a Indian forest service. ठीक है, तो ये भी हम लोगों ने रीड किया है फोर्थ पैराग्राफ में. योर ग्रेट ग्रैंडफादर हैड सर्व्ड मेनी इयर्स इन द इंडियन नेशनल फॉरेस्ट, है ना. तो इसके बारे में भी हम लोगों ने रीड किया था फोर्थ पैराग्राफ में स्टार्टिंग के. ही सर्व्ड फॉर द नेशन, सेकंड ऑप्शन. ही अंडरस्टूड एंड लाइक ट्रीज, ही प्लांटेड मेनी ट्रीज. तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट सेकंड, मीन्स ही अंडरस्टूड एंड लाइक ट्रीज. ठीक है. नाउ द फिफ्थ क्या है हमारा? फिफ्थ है ग्रैंड मदर्स फादर कुड नॉट क्रिएट अ फॉरेस्ट इन द स्क्रबलैंड एज. ठीक है, ऑप्शंस आर देयर वाज नो वाटर, द बर्ड्स वुड नॉट लेट द सैपलिंग्स ग्रो, और द थर्ड ऑप्शन इज द ग्रेजिंग कैटल एट अप ऑल द सैपलिंग्स. तो हमने थर्ड ऑप्शन के बारे में रीड किया था कि जो ग्रेजिंग कैटल है वो सारी खा जाएंगे सैपलिंग्स को. ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी. फिफ्थ का क्या हो जाएगा? सी. ओके स्टूडेंट्स. नाउ सिक्स्थ, grandmother helped her father plant trees because she wanted people to see the trees. She loved her father. A world without trees was a nightmare for her. तो हमने लास्ट में ही ये पढ़ा था, a world without trees was a nightmare for her. Means the trees were very important. ठीक है, grandmother helped her father plant trees because grandmother ने अपने father की help क्यों की? क्योंकि trees के बिना जो world है it will be nightmare for her. It was a nightmare for her. और trees were the very important in view of the grandmother also. Okay, तो आंसर हो जाएगा आपका C. Okay students. The C question is use these words in the sentence of your own. तो इन words का use करके हमें sentences frame करना है. So students, you can frame the any sentences of your own, but I am making some sentences, so you can write these sentences. Okay students. Now the first is scrubland. So meaning of scrubland is
एरिया कवर्ड विद शॉर्ट वेजिटेशन। स्क्रबलैंड का मीन्स क्या होता है? एरिया कवर्ड विद शॉर्ट वेजिटेशन, ऐसा एरिया जो शॉर्ट वेजिटेशन से कवर्ड हो। सो हम लोगों ने इस चैप्टर में स्क्रबलैंड के बारे में रीड किया था। फादर अक्सर स्क्रबलैंड में जाया करते थे, है ना, मॉनसून सीजन में। तो हमने वहीं से एक सेंटेंस फ्रेम कर लिया, फादर वुड वॉक इनटू द स्क्रबलैंड। ठीक है, तो हम कोई भी सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। नाउ द सेकंड मीनिंग, तो फर्स्ट सेंटेंस है आपका फादर वुड walk into the scrubland. Okay, now the second, cicadas. Cicadas means क्या होता है? Insects with large wings that produce a high pitched drone. Insects होते हैं एक तरीके के ये, ठीक है, cicadas. So cicadas were insects with large wings. Okay, cicadas were insects with large wings. ठीक है, जिंगूर टाइप के रहते हैं ये। पोकी, नेक्स्ट इज पोकी। पोकी मीन्स होता है टिनी, crammed house. Okay, संकरा। grandmother did not grandmother did not like to live in pokey house। तो हमने सेंटेंस ये चैप्टर से ही निकाले हैं सारे सेंटेंसेस। ओके, तो थर्ड सेंटेंस हो जाएगा आपका grandmother did not like to live in a pokey house। now the fourth sentence, fourth word is constantly। constantly means होता है निरंतर, लगातार। the trees were increasing constantly। the trees were increasing constantly। हम लोगों ने चैप्टर में रीड किया है जो ट्रीज लगातार बढ़ रहे थे। ओके, नाउ द आयरलैंड। ठीक है, द टेमरिंड ट्री, द टेमरिंड ट्री, टेमरिंड मीन्स होता है इमली का पेड़। टेमरिंड ट्री मीन्स इमली का पेड़, was growing in the Ireland। Okay, the tamarind tree was growing in the Ireland। So students, these are the 5 sentences। so आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, आपको नोट नहीं करना है कहीं भी, आपको ऑलरेडी नोट्स में सारे सेंटेंसेस, सारी एक्सरसाइज कवर्ड अप मिलेगी। तो जितनी जितनी मैंने आपको एक्सरसाइज करे उसको आप फोकस करना है आपको, और आपको नोट्स में प्रिंटेड फॉर्म में मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, ओके। So now students, we are on the page number 44 and we are going to study about the grammar corners। So students, in the grammar book we are also studying the grammar, but in the reader book we also are studying the grammar corner। So grammar corner का जो first question है वो है हमारा prepositions। So students, grammar में भी हम लोग prepositions पढ़ते हैं, reader में भी हम grammar corner के अंदर prepositions पढ़ रहे हैं। So first of all we will read the definition of the preposition। तो सबसे पहले हम preposition की definition को देखेंगे। A preposition is a linking word which comes usually before a noun or a pronoun। So preposition ऐसे linking words होते हैं जो usually noun और pronouns के पहले आते हैं। Okay, now prepositional phrases। The prepositional together with the noun or noun group is called the prepositional phrases। तो preposition noun और noun group के साथ मिलकर prepositional phrases बनाते हैं, prepositional phrases होते हैं। So most prepositional phrases consist of a preposition plus noun, pronoun और ing word। तो most prepositional phrases में क्या होता है? preposition plus a noun, pronoun आता है और ing word आती है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स कुछ टाइम एक्सप्रेशंस preposition phrases दिए हैं, ये phrases है, these are the fixed। okay, तो अगर हम कुछ देखें, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, F नंबर, fill in the blanks with the suitable preposition and more than one choice possible in certain cases। तो यहाँ पर हमको suitable preposition को फिक्स करना है। So students, ऐसा नहीं कि जो मैं preposition फिक्स कर रहा हूँ, अगर मैं चाहूँ तो कोई दूसरा preposition भी इसकी जगह फिक्स करता हूँ तो भी अगर मतलब सेम निकल रहा है तो हमारा preposition सही होगा। तो एक सेंटेंस में एक या दो preposition का यूज हो सकता है, ठीक है, लेकिन मीनिंग एक निकलता है और सेंटेंस सही हो सकता है। तो जरूरी नहीं कि अगर मैंने एक सेंटेंस में एक प्रीपोजिशन यूज किया, अगर मैं उसमें दूसरा भी प्रीपोजिशन अगर सेट करना चाहूँ और अगर उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस सही जा रहा है तो वो भी हमारा आंसर सही होगा। तो डोंट कंफ्यूज अबाउट दीज। ओके, सो यू कैन यूज एनी प्रीपोजिशन बट मीनिंग मस्ट बी करेक्ट। ओके, द फर्स्ट सेंटेंस इज आई हैव रिटन एन इंटरेस्टिंग बुक डैश द प्रॉब्लम्स ऑफ द टीनेजर्स। तो मैंने एक इंटरेस्टिंग बुक लिखी है टीनेजर्स की प्रॉब्लम्स के बारे में या उनके ऊपर। तो मैंने यहाँ पर अबाउट का यूज करके उनके बारे में लिखा है, आई हैव रिटन एन इंटरेस्टिंग बुक अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ द टीनेजर्स। मैंने एक इंटरेस्टिंग बुक लिखी है टीनेजर्स की प्रॉब्लम्स के बारे में। तो मैंने फर्स्ट सेंटेंस में क्या यूज किया है? अबाउट का यूज किया है। नाउ द सेकंड सेंटेंस इज व्हाट आर यू थिंकिंग। तो सेकंड सेंटेंस में मैंने यूज किया है फॉर। तो सेकंड सेंटेंस का आंसर है हमारा फॉर। आप क्या सोच रहे हैं? व्हाट आर यू थिंकिंग फॉर। क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ द थर्ड सेंटेंस इज at least 10 students were absent from the class।
सो स्टूडेंट्स थर्ड सेंटेंस में मैंने एट का यूज किया है। ऑफन हम ऐसा बोलते हैं, एटलीस्ट 10 स्टूडेंट्स फ्रॉम एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, ठीक है, एटलीस्ट 10 स्टूडेंट जो थे क्लास से एब्सेंट थे, तो हमने थर्ड सेंटेंस में यूज किया एट का। नाउ द फोर्थ सेंटेंस इज लर्निंग द पोयम बाय हार्ट इज मीनिंगलेस इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड इट। यदि तुम पोयम को, यदि तुम समझते नहीं हो, तो कंठस्थ किसी भी चीज को बिल्कुल रटकर याद करना जो होता है वो मीनिंगलेस होता है, ठीक है। तो लर्निंग द पोयम बाय हार्ट कंठस्थ होता है एक तरीके से याद करना इस तरीके से, ठीक है। तो फोर्थ वाले सेंटेंस में हम लोग यूज करेंगे बाय का। नाउ द फिफ्थ सेंटेंस, वी प्लग्ड फ्रेश एप्पल्स डैश द ट्रीज एंड एट देम। हमने फ्रेश एप्पल्स तोड़े पेड़ से और उन्हें खा लिया। तो किसी चीज से तोड़ा मतलब उस चीज से उसका कांटेक्ट अलग हुआ, तो जब भी कांटेक्ट सेपरेशन की बात आती है तब हम यूज करते हैं फ्रॉम का। तो फिफ्थ सेंटेंस में हमारा यूज हो जाएगा फ्रॉम। इट मीन्स कि वी प्लग्ड फ्रेश एप्पल्स फ्रॉम द ट्रीज एंड एट देम। हमने पेड़ से फ्रेश एप्पल्स प्लग किए, तोड़े और उनको खा लिया। नाउ द सिक्स्थ सेंटेंस, अनफेयर मीन्स कैन ब्रिंग इजी मनी बट दे प्रूव हार्मफुल इन द लॉन्ग रन। मीन्स कि अनफेयर तरीके से जो पैसे, अनफेयर तरीके से इजीली हम मनी ला सकते हैं लेकिन वो लॉन्ग रन में हार्मफुल प्रूफ हो सकती हो जाती है। ओके, तो हम यहाँ पर सिक्स्थ सेंटेंस में यूज कर रहे हैं इन का। ओके, सिक्स्थ सेंटेंस में क्या यूज होगा, इन। नाउ सेवेंथ सेंटेंस, फ्रॉम द होल आई एम सेटिस्फाइड विथ योर वर्क। फ्रॉम द होल आई एम सेटिस्फाइड विथ योर वर्क, पूरे में से आपके काम से संतुष्ट हूँ। तो सेवेंथ में दो सेंटेंस, सॉरी एक ही सेंटेंस है, दो फिलअप है, तो पहले वाले फिलअप में आएगा फ्रॉम और दूसरे वाले फिलअप में आएगा विथ। सेवेंथ के फर्स्ट में आएगा फ्रॉम, सेकंड में आएगा विथ। ओके स्टूडेंट, सेवेंथ सेंटेंस क्लियर है। नाउ एट्थ, एन इरेसाइलेंस कवर्स द एंटायर प्लेस एट नाइट। तो एट्थ वाले सेंटेंस में हम यूज करेंगे एट नाइट, ठीक है। एट्थ वाले सेंटेंस में आएगा एट। नाउ द नाइन्थ सेंटेंस, द फायर वॉज पुट आउट बाय द फायरमैन ऑन वाटर। तो नाइन्थ वाले सेंटेंस में भी दो फिलअप है, पहले वाले में आएगा बाय और दूसरे वाले में आएगा ऑन। फायरमैन द्वारा पानी डालकर आग पर काबू पाया गया। ओके, नाइन्थ सेंटेंस, तो बाय और ऑन का यूज करेंगे, ठीक है। नाउ द टेंथ सेंटेंस, कैन यू ट्रांसलेट दिस पैसेज फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। क्या आप इस पैसेज को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हो। तो टेंथ के फर्स्ट में मैंने यूज किया फ्रॉम का और सेकंड में मैंने यूज किया टू का। सो स्टूडेंट, जितना भी मैंने ग्रामर पोर्शन, जितना भी मैंने एक्सरसाइज का पोर्शन करवाया है आपको उतना ही करना है। क्वेश्चन आंसर्स और जो आंसर द क्वेश्चंस आफ्टर रीडिंग द लाइंस है वो मैंने आपको नोट्स में प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैंने एक्सरसाइज को भी नोट्स में कवर अप किया है। स्टूडेंट्स, जो भी एक्सरसाइज है, जो भी मैंने एक्सरसाइज इसमें वीडियो में डिस्कस की है वो आपकी वीडियो वाली एक्सरसाइज जो है वो नोट्स में भी आपको कवर्ड अप मिलेगी, तो आपको लिखने की नीड नहीं है, आप उस नोट्स में से देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बट आप प्रैक्टिस के लिए चाहे तो ग्रामर बुक में, सॉरी इसमें रीडर बुक में फिल कर सकते हैं, तो जिससे आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो 10th सेंटेंस है आपका, कैन यू ट्रांसलेट दिस मैसेज फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। तो पहले वाले में आपका इसमें आएगा फ्रॉम और दूसरे वाले में आएगा आपका टू। ओके, सो दीज आर द प्रीपोजिशंस। ओके स्टूडेंट, दीज वर द ग्रामर पोर्शन and the exercise portion. Thank you very much. Okay students.